اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر اس بابرکت ایمانی نورانی فکری علمی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ کلاس الحمدللہ قرآن مجید کی ادائیگی کو سیکھنے کے لیے اور نماز کو پریکٹیکلی سیکھنے کے لیے جو ہے وہ چل رہی ہے. اب تک الحمدللہ ہم کافی ساری چیزیں قرآن مجید کی ادائیگی کے حوالے سے اور نماز کی ادائیگی کے حوالے سے سیکھ چکے ہیں. پچھلی اتوار جو تھا وہ درس قرآن تھا، جس کی وجہ سے یہ تقریباً 15 دن کے بعد کلاس میں جو ہے ملاقات ہو رہی ہے. اس لیے جب تھوڑا سا لمبا گیپ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ربط ٹوٹ جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اب تک جو پڑھ چکے ہیں ذرا مختصر سی اس پر نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ پچھلی کلاس کے ساتھ ہمارا ربط قائم ہو جائے اور پھر آج کی کلاس کا نیا سبق بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھتے ہیں. تو اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ذرا اس کو ایک نظر سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے جب کلاس شروع کی تو سب سے پہلے ہم نے کچھ قواعد پڑھے قرآن مجید کی ادائیگی کو سیکھنے کے لیے، اور عام طور پر قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے جن قواعد کو جاننا اور سیکھنا ضروری تھا وہ قواعد جانیں اور سیکھیں. مثلا اس میں ہم نے حرکات کا سبق پڑھا. حرکات کسے کہتے ہیں؟ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جی حرکات 3 ہیں. بولیں کون کون سی؟ پیش زبر زیر. بولیں پیش زبر زیر. ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں؟ ان کی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں؟ نہیں. بغیر لمبا کیے پڑھنا ہے. آواز کو لمبا بھی نہیں کرنا اور بالکل اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ آواز کی ادائیگی میں جھٹکا پیدا ہو جائے. مثلا با زبر با زیر با پیش با زبر با ٹھیک ہوگا؟ با زیر بی ٹھیک ہوگا؟ با پیش بو غلط ہے. تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ حرکات کی آواز کو لمبا نہیں کرنا. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ ان کو مجہول نہیں پڑھنا. مجہول نہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ با زیر بے نہیں بولنا، یا با پیش بو، لام زیر لے، لام پیش لو، یہ غلط ہے. الحمدو غلط ہے. الحمدو. للہ غلط ہوگا. للہ ٹھیک ہے. لام زیر بولیں لام زیر لام زیر لے غلط ہے. ٹھیک ہے. صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ لام زیر لی. لام زیر لے نہیں پڑھنا. حاضر ہی یا ہے ہی بولیں گے. ہی لمبا بھی نہیں کرنا اور اسے مجہول بھی نہیں پڑھنا. حاضر ہے نہیں بولنا، حاضر ہی بول. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تمام حروف کی آپ مثال لے سکتے ہیں. ہم نے اس کی خوب پریکٹس بھی کی ہوئی ہے، اس کو پڑھا بھی اسی کا صرف ایک ربط قائم کرنے کے لیے میں دہرا رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے سبق پڑھا تھا حروف مد کا. حروف مد میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ کتنے ہیں حروف مد؟ 3. کون کون سے؟ حروف مد کتنے ہیں؟ 3. یہ تو کلیئر ہو گیا. چلے یہ تو بول دینا حروف مد کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟
देख के बता सकते हैं आप? जी आप बोले जरा। वाव अलिफ या, सारे बोले। इनके बारे में हमने ये सीखा था कि हुरूफ मद जो है इनकी आवाजों को हमेशा लंबा करके पढ़ते हैं, इनकी आवाजों को। दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि दो पेशों से वाव बनती है, दो जबरों से अलिफ बनता है और दो जेरों से या बनती है। तो गोया जबर की आवाज को 2 गुना बढ़ा देंगे तो अलिफ की आवाज पैदा हो जाएगी, पेश की आवाज को 2 गुना बढ़ा देंगे तो वाव की आवाज पैदा होगी, और जेर की आवाज को 2 गुना बढ़ाएंगे तो या की आवाज बनेगी। मिसाल के तौर पर यह है बा जबर बा, ठीक है। इसके साथ जब हमने अलिफ मिलाया तो इसका मतलब है कि हमने 2 जबरें और साथ मिला दी। बा जबर बा, अलिफ मिलाया तो 2 जबरें और, तो यानी इस जबर की आवाज को हम 2 गुना बढ़ा देंगे, इस जबर की आवाज को हम 2 गुना बढ़ा देंगे। तो ये बा जबर अलिफ, बोले बा जबर अलिफ, जीम जबर अलिफ, लाम जबर अलिफ। सेम ऐसे ही जब पेश की आवाज, पेश के साथ वाव लगाएंगे तो पेश की आवाज को 2 गुना बढ़ा देंगे। बा पेश बा पेश बा पेश बू, और वाव साथ मिलाया बा पेश वाव, बाजेर जब या साथ मिलाई बाजेर या बी, आवाज को लंबा करें, बोले बाजबर अलिफ बा पेश वाव, बाजेर या जीम जबर अलिफ, जीम जबर अलिफ, जीम जेर या जीम पेश वाव, दाल जबर अलिफ, दाल जबर, दाल जबर, दाल जबर अलिफ, दाल पेश वाव, दाल पेश, ठीक है जी। इसके बाद हमने उल्टा पेश खड़ी जबर खड़ी जेर के बारे में पढ़ा था। ये सेम रूफे मद की तरह है, जिस तरह हम वाव अलिफ या की आवाज को लंबा करते हैं उस तरह ही हमने उल्टा पेश खड़ी जबर खड़ी जेर की आवाज को लंबा करना है। मसलन देखिए बा पेश वाव बू, बा उल्टा पेश बू, बा जबर अलिफ बा, बा खड़ी जबर, ठीक है। बा जेर या बी, इसी तरह बा खड़ी जेर, जितनी या की आवाज उतनी खड़ी जेर की आवाज, जितनी अलिफ की आवाज उतनी खड़ी जबर की आवाज, जितनी वाव की आवाज उतनी ही उल्टा पेश की आवाज। इसके बाद हमने सबक पढ़ा था, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मुख्तसरन सिर्फ एक रब्त कायम करने के लिए दुराई हो जाएगी। इसके बाद हमने सबक पढ़ा तनवीन का। तनवीन का माना हमने सीखा था, कोई बता सकता आप में से? जुल्करनैन साहब के अलावा। तनवीन का क्या माना हमने सीखा? को तनवीन कहते हैं, ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी, वाज़ेह हो। तनवीन का माना क्या सीखा? नून नून के साथ आखिरी जो लफ्ज़ आता है। हाँ जी बोलें, जिसके आ रहा है जिसको बोलें। तनवीन का माना हमने सीखा था, चले मैं हाफ लिख देता हूँ, कंप्लीट करते हैं इसमें। नून की आवाज, नून की आवाज आखिर पर बोलना, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना, ठीक है जी। ये नून, ये तनवीन का माना। अब तनवीन कहते किसे हैं? 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब बोले ना, 2 जबर 2 जेर मेरे ख्याल से अब तो समझ आ गई होगी बनवाने का मकसद क्या होता है, याद करवाना होता है जी। बोले तनवीन किसे कहते हैं? नून की आवाज को जाहिर करके, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और तनवीन का माना क्या है? नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। बोले नून की आवाज को जाहिर करना। अब देखें बा 2 जबर बन, नून की आवाज जाहिर हो रही है। बा 2 जेर बी,
बा दो पेश बन बिन बुन। तो तनवीन का माना क्या है? नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। तनवीन कहते किसे हैं? दो जबर दो जेर दो पेश। ठीक है जी। इसके बाद हमने जो सबक सीखा था वो ये सीखा था अलिफ से लेकर या तक। अलिफ से लेकर या तक कितने हरूफ हैं? 29 29 हरूफ हैं। इनमें से 7 हरूफ ऐसे जो हमेशा हर हाल में मोटी आवाज के साथ पढ़े जाते हैं। पुर करके खौ सौद वाह। ये 7 हरूफ जो हैं 29 में ये हमेशा हर हाल में मोटी आवाज के साथ पुर करके पढ़े जाते हैं। और 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर और कभी बरीक पढ़े जाते हैं। वो कौन कौन से बोले? अलिफ लाम रा। ये कभी मोटी आवाज के साथ और कभी बरीक आवाज के साथ। और इसके अलावा बाकी 19 हरूफ जो हैं वो हमेशा बरीक आवाज से पढ़े जाते हैं। इन 7 और 3 10 को निकाल के बाकी जो 19 हरूफ बचते हैं वो हमेशा हर हाल में बरीक आवाज के साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। 19 हरूफ भी क्लियर। इनके बारे में हमने सीखा था। अलिफ के बारे में हमने क्या सीखा था? अलिफ कब पुर पढ़ा जाता है? पहला सवाल। अल्लाह के जी बिल्कुल ठीक। अलिफ से पहले पढ़ा जाने वाला अगर पुर हरफ है तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले अगर बरीक पढ़ा जाने वाला हरफ है तो अलिफ कैसे? कौल। आप देखेंगे अलिफ इससे पहले कौफ पुर पढ़ा जाने वाला हरफ है तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा कौल। और अलिफ से पहले अगर बरीक पढ़ा जाने वाला हरफ है बा तो देखें बा आ गया। बा बरीक पढ़ा जाता है तो अलिफ भी बरीक पढ़ा जाएगा। तो अलिफ अपनी अदायगी में अपने पहले वाले हर्फ के ताबे होता है, उसके मुताबिक पढ़ा जाता है। अगर अलिफ से पहले पढ़ा जाने वाला हर्फ पुर है तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले पढ़ा जाने वाला हर्फ बरीक है तो अलिफ भी बरीक पढ़ा जाएगा। उसके बाद लाम के बारे में हमने सीखा था। हाँ जी, लाम के बारे में हमने ये कायदा सीखा था कि लाम हमेशा बरीक पढ़ा जाता है। ये जो हम लाम की बात कर रहे हैं ये सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह के लाम की बात कर रहे हैं। लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है वो कभी पुर और कभी बरीक पढ़ा जाता है। उसके अलावा लाम कहीं भी आएगा तो वो बरीक पढ़ा जाएगा। तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम कब पुर पढ़ा जाता है और कब बरीक? पहला सवाल, कब पुर पढ़ा जाता है? जी कौन बताएगा? जब लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो लाम पुर पढ़ा जाएगा और जब जेर हो तो बरीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं। आप देखें अब बिस्मिल्लाह में लाम बरीक पढ़ा जाएगा या पुर? क्यों? उससे पहले इस्लाम से पहले जेर आ गई। कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, सूरह इखलास में कुल हुवल्लाह, तो हुवल्लाह में लाम जो है ये बरीक पढ़ा जाएगा या पुर? क्यों? पहले जो है जबर आ गई हुवल्लाह। ठीक हो गया। उसके बाद रा। हाँ जी, रा के बारे में हमने सीखा कि रा की कुछ सूरतें हैं जिनमें रा पढ़ी जाती है और कुछ सूरतें वो हैं जिनमें रा बरीक पढ़ी जाती है। उनमें जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रा पर जब जबर हो तो रा पढ़ा जाएगा। पढ़ा हमने। रा पर जब पेश हो तो रा पढ़ा जाएगा। इसी तरह रा जब साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो तब भी पुर पढ़ा जाएगा और पेश हो तो भी रा पढ़ा जाएगा। रा वक्त की वजह से साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ पर जबर या पेश हो तो इस सूरत में भी रा पुर पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया। और रा साकिन हो, ठीक है, और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो और उसके बाद वाला हर्फ पुर पढ़ा जाने वाला हो तो भी रा पुर पढ़ी जाएगी। जैसे फिरक़तुन, ये हमने पढ़ी थी मिसाल। फिरक़तुन देखें रा साकिन, उससे पहले पहले जेर और उसके बाद भी पढ़ा जाने वाला हर्फ पुर, तो रा पुर पढ़ी जाएगी। फिरक़तुन बोले